Namaskar. Very warm welcome to all the learners, viewers, students, teacher, educator in this very special session of CIET NCERT named webinar. I'm Renu Bhatt with you all, and you are watching us live on eVidya channels from channel number 6 to 12. And apart from all those channels, you are with us on our YouTube channel as well, that is NCERT Official. और इस सेशन में हम बात करते हैं, एक सीरीज़ हम लेकर आए हैं जर्नी ऑफ नेशनल आईसीटी अवॉर्डी टीचर्स पर, जिसमें आज हमारे साथ हमारे टीचर्स जुड़ चुके हैं जो कि बताएंगे अपने सभी चैलेंजेस, अपनी जर्नी हमारे साथ वो शेयर करेंगे और किस तरह से उन्होंने वो सभी चैलेंजेस ओवरकम किए और अपना लक्ष्य प्राप्त किया, हमारे साथ वो साझा करने वाले हैं। तो हम बिना किसी देरी के उनसे मुलाकात करते हैं। चलिए, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, वो हैं मिस्टर मोहम्मद अयाज रैना। आप टीचर एजुकेटर हैं डाइट राजौरी और जम्मू एंड कश्मीर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। थैंक यू मैम, थैंक यू रेनू मैम एंड द एंटायर CIT NCERT team for inviting me to showcase my journey. Sure, sir. Pleasure is all ours. And before I start this particular webinar, let me share some certain information to all the viewers and students out there. In case they have any query or they want to know more about your journey, how they can reach out to us. You can reach out to us through our various mediums. You can call us, even you can drop a mail as well. You can call us on our telephone number, that is 8800440559. Either you can drop a mail at our email address, that is training.helpdesk@ciit.nic.in. We would appreciate your effort if you share your feedback as well. और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे हैं, यानी कि NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पे हैं, तो आप लाइव चैट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वेरीज़ के साथ आप हमसे हमारे इस लाइव इंटरैक्टिव फ़ोन इन सेशन में जुड़े। और इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, वेबिनार स्टार्ट करें, लेट मी शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद यू ऑल रिगार्डिंग India's G20 presidency. We are indeed very proud that India assumed G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifests the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, let's quickly get back to the session in which we are going to know more about our experts' journey. अयाज सर, हम आपके पास आना चाहेंगे सर, और आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, क्या क्या चैलेंजेस आपको मिले और कैसे आपने उन्हें ओवरकम किया सर। Thank you, ma'am. So far as myself is concerned, ma'am, I am from a remote village of Thana Mandi, and it is located in Jammu and Kashmir, and this very area falls in a border belt that is Rajouri district. So far as my education is concerned, I did my primary education from native primary school, or I can say government school, and after that I did my metric or secondary school examination from government high school Thana Mandi, and then I did my graduation from 12th from higher secondary school boys Thana Mandi, then graduation from PG college Rajouri, then I went to AMU for continuing my higher studies, from where I did my post graduation in botany department. So far as my various courses and trainings are concerned, तो मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस अकाउंटिंग और मल्टीलिंगुअल डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कोर्स भी किया है। एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर चुका हूँ, 1 ईयर डॉइक ए लेवल कोर्स कर चुका हूँ। सर्टिफिकेट कोर्स ऑन अंडरस्टैंडिंग ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज फ्रॉम कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, ये मैं कर चुका हूँ। इंडक्शन कोर्स ऑफ ICT इन एजुकेशन करिकुलम फ्रॉम CIT NCERT, then designing of ICT pedagogy intervention for teaching, learning and assessment from CIT NCERT, ये भी मैं कर चुका हूँ। सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग विद टेक्नोलॉजी फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये भी कर चुका हूँ। देन मास्टर क्लासेज ऑन रिमोट स्कूलिंग फ्रॉम FIKI-RISE, and then I have many trainings. I have received many online trainings from CIT NCERT and other organizations. So far as my roles and responsibilities are concerned, मैं जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क का डिस्ट्रिक्ट नोडल पर्सन रह चुका हूँ,
इसमें मैं बाद में बात भी करूंगा। स्कूल नोडल ऑफिसर आईसीटी का रह चुका हूँ, कंटेंट क्रिएटर फॉर जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड दीक्षा। मैं डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी हूँ नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का, सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हूँ स्क्रैच कोडिंग फ्रॉम पाईजैम का। देन एनसीईआरटी सर्टिफाइड की रिसोर्स पर्सन इन आईसीटी हूँ, सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर फॉर एससीईआरटी यूनिसेफ टिस कोर्स, इसका भी सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हूँ। देन मेंबर हूँ जेके साइंस कम्युनिकेटर्स नेटवर्क का, डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर इंस्पायर अवार्ड मानक। देन डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कोऑर्डिनेटर दीक्षा, साइबर एम्बेसडर जेके एससीईआरटी, डाइट आईसीटी एक्सपर्ट भी हूँ, डीएनओ हूँ स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। एंड देन आई आल्सो एक्ट एज जूरी मेंबर ई रक्षा कंपटीशन। सो फार एज माई जर्नी ऑफ आईसीटी इज कंसर्न, तो मेरी जो जर्नी है टीचिंग लर्निंग की, दैट स्टार्टेड वे बैक इन 1993 व्हेन आई वाज इंडक्टेड इन एजुकेशन एज ए टीचर। दो आई बिलोंग टू साइंस बैकग्राउंड, और आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड बाई, बट मेरा जो पैशन था टीचिंग लर्निंग का, यानी कि टीचिंग लर्निंग टेक्नोलॉजी जो है मैं सीखूं, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 2002। एंड डिस्पाइट माई वेरियस अचीवमेंट्स, जो चैलेंजेस थे मेरे स्टूडेंट्स के विच बिलोंग टू दिस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, दे केप्ट मोटिवेटिंग मी टू कंट्रीब्यूट समथिंग गुड फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। सो इन ऑर्डर टू टीचिंग माई ओन सब्जेक्ट and fulfilling my assigned responsibilities with zeal and zest, I wanted to build infrastructure, IT infrastructure in my institution. So ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये हाईलाइटेड पोर्शन गूगल मैप के बीच आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, ये मेरा वो स्कूल है जहां पर मैंने आईसीटी के ऊपर बहुत सारा काम किया और मेरे 2 बेहतरीन सर्विस के टेन्योर यहाँ गुजरे। एंड दिस इज द एरियल व्यू ऑफ माय इंस्टीट्यूशन। देन यहाँ पर मुझे साइंस टीचर बतौर काम किया, एंड देन आई परफॉर्म माय ड्यूटीज एज स्कूल नोडल ऑफिसर आईसीटी। So my plight for learning computer started when the Department of School Education J&K recommended my name for 1 year DOIC A-level training in way back in 2002. और ये ट्रेनिंग जब मैंने मुकम्मल की 1 साल की, आफ्टर रिसीविंग दिस A-level course, I was transferred from my हायर सेकेंडरी स्कूल प्लांगर टू बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल थन्ना मंडी। एंड जब मैंने इस इंस्टीट्यूशन के अंदर ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि उस वक्त जो आईटी सब्जेक्ट था, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका था, और जिन लोगों ने ए लेवल ट्रेनिंग किया था उनको पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजा जा रहा था, और ये एक एडिशनल काम था। तो मुझे भी वहाँ आईटी सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिला, बट जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल कंप्यूटर। तो हमारे स्कूल के बिल्कुल बगल में एक आर्मी का ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, और आई अप्रोच्ड उनके ऑफिसर्स तक पहुंचा मैं, और मैंने 14 सेट्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स अपने स्कूल के लिए अंडर ऑपरेशन सद्भावना मैनेज किए। उसके बाद हमें डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हमें 6 सेट्स ऑफ कंप्यूटर दिए, और इस तरीके से एक फर्स्ट कंप्यूटर लैब ऑफ इट्स काइंड स्टार्टेड फंक्शनिंग इन माय इंस्टीट्यूशन। और हमने बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया, और ये आप देख भी रहे हैं कि बच्चे जो है किस तरीके से अपने असाइन टास्क जो है लैब के अंदर कर रहे हैं। और मुझे फख्र है कि मुझे ये आईटी सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिला, और ये आईटी सब्जेक्ट 2005 से 2013-14 तक, यानी यहाँ मुझे ये मौका मिला पढ़ाने का। एट दैट टाइम दिस सब्जेक्ट वाज जस्ट ऑप्शनल, और उसके बाद ये कंपलसरी सब्जेक्ट बन गया फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स अप टू 2018। यही सब्जेक्ट का नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया और इसको चेंज किया गया इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के अंदर, और ये सब्जेक्ट भी मुझे पढ़ाने का मौका मिला, और ये उस वक्त कंपलसरी हो गया। और यहाँ स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे कि जो बच्चों ने मुझे रिजल्ट दिया, दैट वाज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। और इन बिटवीन क्या हुआ कि हिस्टोरिकल विजिट हुआ, हमारे उस वक्त की जो सरकार थी, उसके एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ आए, एंड ही विजिटेड ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द स्कूल। ही मेट विद द प्रोमिनेंट सिटीजन्स, ही वेंट टू माय लैब, एंड ही वाज सेटिस्फाइड द वे कि स्कूल जो फंक्शन कर रहा है वो देख के बड़ा मतलब इम्प्रेस हुआ, एंड ही प्रॉमिस टू प्रोवाइड 1 आईसीटी लैब। और उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि इस स्कूल को मॉडल स्कूल होना चाहिए। देन चूंकि अब आईसीटी पे थोड़ा सा हम आते हैं, तो आई हैड अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बट इट्स प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन ऑन ए लार्ज स्केल वाज नॉट पॉसिबल, बिकॉज मुझे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। एंड मैं शुक्रिया करना चाहूंगा आपकी इस प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, थ्रू विच कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है टीचर्स की हो रही है, लाइक मी, हु आर क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स एंड एक्वायर न्यू स्किल्स।
so far as my profession is concerned, and it was a turning point in my career when for the first time I was deputed by Diet Rajouri for a training course, that is training of mentors coordinators in use of ICT for teaching learning in 2011. और ये ट्रेनिंग जो है CIT NCERT ने के इश्तराक से हुई SI जम्मू के अंदर. एंड बिफोर दैट आई हैड ग्रेट क्यूरियोसिटी टू लर्न द सब्जेक्ट, बट एक वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था. लेकिन इस ट्रेनिंग में आई वॉज इंस्पायर्ड एंड गाइडेड बाई प्रोफेशनल्स इन द फील्ड, जैसे डॉक्टर प्रोफेसर अमरिंद्रा प्रसाद बेहरा, ही वॉज द कोऑर्डिनेटर ऑफ दैट प्रोग्राम. और मैं उनसे मिला एंड आई वॉज इंस्पायर्ड. और उसके बाद डॉक्टर MU पायले, दो ही इज नॉट नो मोर विद अस, बट उसके जो इन्फोग्राफिक्स या उनके जो माइंड मैप्स आज भी हम क्लास में यूज करके उनको याद करते हैं. और रियली स्पीकिंग के मेरी जो प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है ICT में, ये CIT NCERT की वजह से हुई है. और इसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर अमरिंद्रा प्रसाद बेहरा है, MU पायले हैं, डॉक्टर इंदु कुमार बाबरा जी हैं और डॉक्टर एंजल हैं. इसके अलावा और बहुत सारी पर्सनलिटीज हैं जिनसे रियली हम मुतासिर हुए. In 2016, Department of School Education again recommended my name for training of smart classroom technology at NILET, and there I learned many new ICT tools in teaching learning जो यूज करते हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड को किस तरीके से यूज करना है, विजुअलाइजर क्या होता है, और बहुत सारे ICT टूल्स जिनका हम क्लासरूम में यूज कर सकते हैं. ये चीजें हमने वहां सीखी. एंड इन 2016 एज पर द कमिटमेंट मेड बाय द उस वक्त के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, हमें ICT लैब मिली थ्रू समग्र शिक्षा. एंड सिंस आई वाज टीचिंग द कंप्यूटर सब्जेक्ट, और मुझे ही इसका चार्ज सौंपा गया, इसकी एस्टेब्लिशमेंट, इसकी मेंटेनेंस, इसकी फंक्शनिंग. तो इस तरीके से ये लैब जो है आप देख रहे हैं, ये इस लैब का यानी जो ये सामने आ गई, ये मेरे मतलब मैंने बहुत सारी मेहनत की इसको एस्टेब्लिश करने में. देन इस लैब का पूरे तरीके से हमने ऑफिशियली इसका इनॉग्रेट किया. उस वक्त के जो MLA थे, इन प्रेजेंस ऑफ चीफ एजुकेशन ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एंड इवन प्रिंसिपल ऑफ माय इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट्स, उनकी प्रेजेंस में इसका इनॉग्रेशन हुआ. उसके बाद हमने इस लैब को अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया. और माय यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग विद द help of ICT resources is widely applauded in all the teaching circles. And while teaching, my students show keen interest in teaching through different gadgets, whether it is smart board or other gadgets. और ICT lab के अंदर it reminds me the story of Arabian Nights, when the command is given to the ghost, Aladdin का चिराग, and everything gets done. सो मैंने डिफरेंट जो स्मार्ट बोर्ड के एप्लीकेशन से, सैनकोर हो गया, टीच इन्फिनिटी प्रो हो गया, इसका इस्तेमाल किया बच्चों को पढ़ाने के लिए. और साथ साथ मैं टीचर्स को भी गाइड करता रहा अपने स्कूल के कि किस तरीके से हम इस टूल्स को यूज कर सकते हैं. और साइड बाय साइड आई यूज टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ PPTs, एनिमेशंस, वीडियोस, और उनका फिर बच्चों के साथ हम शेयर करते थे और इवन क्लास लेक्चर के दौरान भी यूज करते थे. और साथ साथ में हम बच्चों का असेसमेंट भी करते थे यूजिंग डिफरेंट टूल्स. जैसे क्लासरूम के अंदर जब हम बच्चों को थ्रू एनिमेशन कोई चीज पढ़ाएंगे या एनिमेशंस को ऐड करेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर, या इन्फोग्राफिक्स को ऐड करेंगे या शॉर्ट वीडियोस को ऐड करेंगे, तो इस तरीके से जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों की जो ऑडियो विजुअल सेंसेस हैं, दे गेट डायरेक्टली टारगेटेड एंड स्टूडेंट्स ग्रैब द थिंग्स मोर फास्ट एंड इन एन एक्यूरेट वे. और ये भी बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मैं इतना बड़ा कंप्यूटर मास्टर तो नहीं हूँ, बट जो हमारे 10+2 के स्टूडेंट्स थे, इनके सिलेबस में HTML था, वेब पेज डिजाइनिंग थी, और मैंने ये खुद सीखी और फिर मैंने अपने बच्चों को सिखाई. और मुझे फख्र है कि मेरे बच्चे जो है मुझसे 2 कदम आगे निकल गए जब उन्होंने मुझे स्कूल का वेबसाइट इस HTML को यूज करके बना के दिया. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स जो स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड के टूल्स हो गए, असेसमेंट रिलेटेड हो गया, एनिमेशन, क्विज़, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, या इवन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रिलेटेड, या वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड, ये टूल्स हमने टीचर्स और बच्चों को भी सिखाया. So in 2017, I was again deputed by Project Director Samagra Shiksha for a master training program of use of ICT in e-learning for upper primary teachers. और इस ट्रेनिंग को मुकम्मल करने के बाद आई फील माई सेल्फ प्राउड कि मैं वापस आके मैंने तकरीबन जोनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अपर प्राइमरी टीचर्स थे, तकरीबन 500 इन नंबर, इनको मैंने ट्रेन किया इन यूज ऑफ ICT. एंड टुडे आई फील प्राउड व्हेन माय फेलो टीचर्स फॉलो मी. और ये पिक्चर्स भी आप देख रहे होंगे, ट्रेनिंग्स के दौरान की पिक्चर्स हैं जब हम टीचर लोगों को ट्रेन कर रहे थे ICT के ऊपर, या टीचर्स जो है हैंड ऑन सेशन कर रहे थे अपना, या हैंड ऑन कर रहे थे लैब्स के अंदर.
देन अपने ही स्कूल के जो टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर्स, मतलब नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से थे, उनको भी मैंने यूज ऑफ आईसीटी कि किस तरीके से हम टीचिंग लर्निंग में आईसीटी को कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे अरेबिक टीचर हो गया, कितने कॉन्फिडेंट तरीके से ये स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अपना अरेबिक जो कंटेंट है वो लिख रहे हैं, या स्पोर्ट्स टीचर हो गए वो किस तरीके से इस स्मार्ट बोर्ड का यूज कर रहे हैं, या इवन टीचर्स फ्रॉम लाइफ साइंस बैकग्राउंड, बॉटनी का टीचर हो, जोलॉजी का टीचर हो, ये किस तरीके से इन टूल्स को यूज कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट का असेसमेंट का जहां तक तल्लक है, हमने असेसमेंट भी बच्चों की करवाई। और हम अक्सर क्या करते थे कि बच्चों को आफ्टर अ वीक बच्चों को कहते थे कि भाई इस दिन आपने सबने स्मार्ट गैजेट्स लाने हैं और आपका हम हेलो टेस्टिंग करेंगे, आपका टेस्ट करेंगे। तो इन ऑर्डर टू evaluate students performance, I used to conduct online assessment test using different tools, Kahoot हो गया, Quizzy हो गया, Mentimeter हो गया, या Quizlet हो गया। और क्योंकि ये रियल टाइम में हम ये टेस्ट करते हैं, और इसका बच्चों का जो रियल टाइम में हमें इसका रिजल्ट भी आ जाता है, और एक क्लियर इंडिकेशन मिलती है टीचर को कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो ये भी एक व्यू आप देख रहे होंगे, बच्चे मोबाइल के ऊपर यानी असेसमेंट टेस्ट दे रहे हैं और इसका रिजल्ट भी फौरन आ ही जाता है। उसके बाद चूंकि डिफरेंट सर्कल्स के अंदर जो लोग आईसीटी में काम अच्छा कर रहे थे, तो उनकी एसोसिएशन होगी जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क के साथ। तो मुझे भी जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क के साथ काम करने का मौका मिला, और वहां पर काम करके मैंने बहुत सारे टीचर्स के साथ ये काम किया, और उनको आईसीटी का जो यूज है टीचिंग लर्निंग में, उस पर हमने उनको सिखाया भी, बहुत सारे टूल सिखाए। सो आईसीटी अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर एक इन्फेंसी स्टेज पे है, और इसकी देख रेख जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क कर रहा है। और जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क बेसिकली एक समग्र शिक्षा का एक इनिशिएटिव है, क्योंकि समग्र शिक्षा के पास ही इसका एक जो आईसीटी का कंपोनेंट उसके पास है। और ये एक समग्र शिक्षा का इनिशिएटिव जिसमें डिफरेंट जो स्कूलों को थ्रू द नॉलेज ऑफ इंटरनेट उनको जोड़ा जाए। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि मोर देन 2000 हमारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर आईसीटी कैल फैसिलिटी है और इंटरनेट फैसिलिटी है। और जेके नॉलेज नेटवर्क जो है इस वक्त क्वालिटी एजुकेशन जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा है, वो आर विक्टिम ऑफ डिजिटल डिवाइड। सो जेके नॉलेज नेटवर्क की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेक्चर्स हम यहाँ यानी बच्चों के लिए लेके आते थे, या ऑनलाइन लेक्चर्स करवाते थे, ब्रेन वेव सेशंस बच्चों के करवाते थे, क्विजेस हो गया, सेमिनार्स हो गया, या इसी तरीके से बच्चों की इंटरेक्शन हम करवाते थे इमिनेंट पर्सनैलिटीज के साथ फॉर मोटिवेशन, कैरियर गाइडेंस। इसी तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स या वर्कशॉप टीचर्स के हम करवाते थे। या ऐसे हमारे स्कूल दूर दराज के स्कूल जहां पर आईसीटी या कैल फैसिलिटी नहीं है, उन स्कूलों से भी हम बच्चों को अपने इन लैब्स के अंदर लाते थे और उनको बताते थे कि जो मॉडर्न ट्रेंड है टीचिंग का वो किस तरीके से होता है। सो ये हमारा जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क का होम पेज है, जिसके प्लेटफॉर्म से हम डिफरेंट एक्टिविटीज करवाते थे। एंड जो एक्टिविटीज नॉलेज नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से होती थी वो बाज़ाब्ता एक हम मंथली जो 4-5 लोगों की जो टीम थी, और इसका जो यानी कंट्रोलिंग जो एजेंसी थी या जो ऑफिसर था वो स्टेट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा के अंदर था। और इसके साथ जो पर्सन मुंसलिक थे, जो लोग मुंसलिक थे, जो मैं नाम लेना चाहूंगा कि एक मयूर खैर जी जो बम्बे से एक प्रोजेक्ट के लिए आए थे समग्र शिक्षा में, और इसी तरीके से विक्रांत सिंह वो एक प्रोग्रामर थे। और हम लोगों ने मिल के क्या किया कि इस प्लेटफॉर्म को आगे लिया और इस पे हमने बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई। हम मंथली नॉलेज नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट जो एक्टिविटीज करवाते थे, थ्रू कैलेंडर करवाते थे। ये भी कैलेंडर का एक मतलब पिक्चर आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट कैलेंडर्स हम बनाते थे और मंथ की 2-3 एक्टिविटीज हम रखते थे, और उस पर्टिकुलर टाइम में वो एक्टिविटीज होती थी और इसमें हम लोग उसमें कोऑर्डिनेट करते थे। एंड और उसके बाद एक पेज इसके साथ और था जिसमें लॉग बुक का पेज के जितने भी आईसीटी और कैल स्कूल्स हैं वो अपना जो भी काम करते थे डेली बेसिस पे लैब के अंदर, वो सारा जो है इस पेज के ऊपर अपलोड कर देते थे। प्रॉपर हमने स्कूल नोडल ऑफिसर्स को क्रेडेंशियल दिए हुए थे, और स्कूल नोडल ऑफिसर्स के ऊपर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होता, तो कभी भी इन स्कूलों की मॉनिटरिंग करता था, देखता था कि किस स्कूल के अंदर कितना काम हुआ है। और फिर स्टेट लेवल पे एक समग्र शिक्षा का कोऑर्डिनेटर होता था, स्टेट कोऑर्डिनेटर, और जो कभी भी इसकी मॉनिटरिंग कर सकते थे। फिर इसी नॉलेज नेटवर्क के पेज के ऊपर एक इल्म कोश रिपोजिटरी का एक पेज है जिसमें जितने भी हमारे आईसीटी एक्सपर्ट्स होते थे वो अपने कंटेंट बनाते थे और अपलोड कर देते थे। तो सर एक इल्म कोश रिपोजिटरी में मैंने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारा हमने कंटेंट बनाया भी है।
फिर हम स्टूडेंट की मेंटरिंग या स्टूडेंट मेंटरिंग एक्टिविटीज भी करवाते थे नॉलेज नेटवर्क से, यानी बच्चों का इमिनेंट पर्सनालिटी के साथ मोटिवेशन और कैरियर गाइडेंस लेक्चर करवाते थे। जैसे अभी बहुत सारे हमारे इंडिया के साइंटिस्ट जो बाहर की यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, चाहे यूएसए हो या इसी तरीके से प्रिस्टन यूनिवर्सिटी हो यूएसए की, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, वहां तक हम पहुंचे और वहां से हमने लाइव सेशंस अपने बच्चों के लिए करवाए, ताकि हमारे बच्चों के अंदर भी एक शूर पैदा हो कि अगर हमारे इंडिया से लोग जाके वहां साइंटिस्ट बन रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम किसी से कम नहीं है। तो इसका हमें बहुत सारा फायदा भी हुआ, हमारे बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई। तो एक्सपर्ट फ्रॉम चाइना, ये भी हमने इनसे रब्ता किया, इनके सेशंस भी हमने अपने बच्चों के लिए करवाए। और इवन कैरियर के ऊपर भी हमने बहुत सारे लेक्चर्स करवाए। रोबोटिक्स के ऊपर हमारी एक इमिनेंट पर्सनालिटी है मनोहर राय जी, इनके सेशंस हमने करवाए ताकि बच्चों को भी पता चले कि रोबोटिक्स क्या फील्ड है और किस तरीके से हम रोबोटिक्स में जा सकते हैं। देन जना प्रबोधनी एक एनजीओ है, उसके साथ भी हमने रब्ता किया, उनके भी हम सेशन जो है टीचर्स लोगों के लिए करवाते थे, बच्चों के लिए करवाते थे। इवन सिविल सर्वेंट्स के सेशंस भी हम नॉलेज नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से करवाते थे। और इवन सन ऑफ साइल जो, या सन ऑफ वी कैन से एर्स्टवाइल स्टेट जो है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ के जो बाहर की दुनिया में हैं, जैसे वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के अंदर या वर्जीनिया में हमारे ताहिर काजी जी हैं, इन्होंने एमबीए वहां से किया और आज एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप पे काम कर रहे हैं वहां पर, और इनके सेशन भी हमने वहां करवाए। देन काउंसलिंग सेशंस, रिनाउंड काउंसलर जो है जेएंडके के, इनके सेशंस हमने जेके नॉलेज नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से करवाए। और आज मैं वसूख से कहता हूं कि आज डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के अंदर एक स्पेशल काउंसलिंग सेल है, और जिसकी देख रेख जो है हमारे काउंसलर रमेश जी कर रहे हैं। देन ये जो नॉलेज नेटवर्क की एक्टिविटीज थी, इन एक्टिविटीज को अप्रिशिएट किया है उस वक्त के सेक्रेटरी एजुकेशन एमएचआरडी अनिल स्वरूप जी ने। ही विजिटेड हियर एंड ही इंटरेक्टेड विद द स्कूल्स इंक्लूडिंग माय इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट स्कूल्स के साथ इंटरेक्ट किया। एंड द नेक्स्ट डे उनके जो अपलॉडिंग रिमार्क्स थे वो पेपर के अंदर भी आए, और उन्होंने उस वक्त की सरकार का शुक्रिया अदा किया कि बेहतरीन काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क जो है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ ऑनलाइन lectures of renowned faculties to the students. देन एजुकेशनल सपोर्ट भी हमने उन बच्चों को दी है नॉलेज नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से जहां पर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ था। जैसे मेरे स्कूल में मेरा ही एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट लेक्चर दे रहा है, तो एक फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा हार्ड एरिया है, वहां पर आईसीटी फैसिलिटी है, नेटवर्क है, बट टीचर नहीं है। तो हमने अपना ही टीचर का लेक्चर वहां भी पहुंचाया। इस तरीके से बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ भी हुआ है। माई सेल्फ इवन मैंने भी स्कूलों तक पहुंचा हूं जहां पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेक्चर्स की कमी थी या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की कमी थी, तो हमने वो लेक्चर दिए। इवन साइंस के रिलेटेड हो या कोई भी जर्नल लेक्चर, वो हमने वहां प्रोवाइड किए। ग्रामर के रिलेटेड हो, इंग्लिश के रिलेटेड हो, या इवन अगर कोई टीचर हमारा कैजुअल पे है और स्कूल किसी वजह से नहीं है, तो उस दिन बच्चों की क्लास भी हमने उस टीचर की ऑनलाइन करवाई है। तो इसी तरीके से नॉलेज नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से हमने डिफरेंट ब्रेन वेव एक्टिविटीज करवाई, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स करवाए। और ये एक पार्टिसिपेटिव एक्टिविटी है जिसमें बच्चों को एक दूसरे एरिया का, कल्चर का, आइडियाज का, बिलीफ का, ट्रेडिशंस का पता चलता है। और मुझे फख्र है कि मैंने नॉलेज नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से फर्स्ट टाइम इन 2017 एक बड़े पैमाने पे मैंने हर डिस्ट्रिक्ट की बेहतरीन एक एक टीम लेके इनका बड़े पैमाने पे मैंने एक क्विज करवाया, और इसको मीडिया ने भी काफी अच्छा बेहतरीन कवरेज भी दिया, इसकी अप्रिसिएशन भी हुई। देन ऑनलाइन डिबेट कंपटीशन की बात करें, हमने बच्चों को ऑनलाइन, डिफरेंट स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन डिबेट भी करवा चुके हैं, और बच्चों को कैमरे के सामने फेस करने का, एक दूसरे को फेस करने का मौका मिला, और बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। इंटर स्कूल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हमने बच्चों के करवाए हैं। और इसी तरीके से हमारे बच्चे अंडमान निकोबार तो नहीं जा सकते, बट हमने इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम उन बच्चों से के साथ पहुंचे हैं, उनके पास पहुंचे हैं, जिनसे हमें एक दूसरे के कल्चर एक्सचेंज का यानी कल्चर का पता भी चला है। हमारे बच्चों को अंडमान निकोबार का और अंडमान निकोबार के जेएनके के बच्चों के कल्चर का पता चला है। सो ये दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज नेटवर्क। इसी तरीके से चूंकि मैं आईसीटी के अंदर जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे यानी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और मेरी सर्विसेज जो है एज ए क्विज मास्टर यूटिलाइज की गई जोनल लेवल पे, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और उसके बाद हमने बहुत सारे टीचर्स को साइंस की डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ये भी दिया है, ऑनलाइन डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई है, और इन हंड्रेड्स मतलब टीचर्स को इसका लाभ हुआ है, बेनिफिट हुआ है।
इसके बाद अगर मैं बात करूं अपने स्कूल के अंदर, मैंने जो एनुअल स्कूल प्रोस्पेक्टस होता है रिलीज करते हैं, इसकी प्रॉपर डिजाइनिंग, इसकी प्रिपरेशन मैंने की है। और फिर इस प्रोस्पेक्टस को उस वक्त के जो वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन उनके हाथों इसका अतरा भी हमने करवाया। देन इफ आई टॉक अबाउट माय यूट्यूब चैनल, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, उसमें ओरिजिनल एजुकेशनल कंटेंट है और इसके स्क्रीन शॉट्स आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। और ये जो है हमने सब बच्चों के लिए काम किया है एंड एनिमेशंस हमने बच्चों के लिए बनाई है। इवन मैं इतना बड़ा प्रोग्रामर हूं नहीं, बट मैंने MIT ऐप इन्वर्टर का यूज करके, ऐप क्रिएटर का इस्तेमाल करके डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनाई है। इनकी APK फाइल्स अभी भी हमारे मतलब मोबाइल में काम कर रही हैं, डाउनलोड करके ये एप्लीकेशन चल रही हैं। बट इन नियर फ्यूचर, आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में शायद ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल होंगी फॉर द बेनिफिट ऑफ माई स्टूडेंट्स। देन मैंने बहुत सारे इंटरेक्टिव कंटेंट्स एजुकेशन के रिलेटेड क्रिएट किए बच्चों के लिए। इसी तरीके से एक हमारे फ्रेंड है संतोष कुमार भाईसन जी, ही इज वेल नोन पर्सनालिटी। इसको मैं कहूँ कि इनोवेटिव एजुकेटर हैं, मल्टीपल अवार्ड विनर्स हैं। उनके मैंने सेशंस करवाए, क्योंकि वो बहुत बड़े क्रिएटिव, मैं कहूँगा कि क्रिएटिव माइंड है उनके अंदर। तो किस तरीके से क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं अपने टीचिंग लर्निंग को जॉयफुल बनाने के लिए, तो ये सेशन भी मैं इनका करवा चुका हूँ और इसका बहुत बेनिफिट हुआ है मेरे टीचर्स को। इसी तरीके से इमरान खान, ही इज आल्सो मल्टीपल अवार्ड विनर फ्रॉम अलवर राजस्थान, ही इज आल्सो कॉल्ड ऐप गुरु, ऐप मैन ऑफ इंडिया। इनके सेशंस भी मैं अपने टीचर लोगों के लिए करवा चुका हूँ रिलेटिंग टू डिफरेंट एजुकेशनल एप्स। फिर मुझे ये फख्र भी हासिल है कि मैंने अपने स्कूल की मेंटरिंग की है इन प्रिपरेशन। चूंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने अपने बच्चों को बहुत सारे साइंटिफिक मॉडल्स बनवाए हैं, उनकी मेंटरिंग की है। फिर उन मॉडल्स को प्रॉपर डिस्प्ले हुआ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे टाइट्स के अंदर, और फिर इनकी प्रॉपर यानी अप्रिसिएशन हुई है, और फिर इन मॉडल्स को स्टेट लेवल पे भी रिप्रेजेंटेशन मिली। देन मैं रिसोर्स पर्सन रहा हूँ हायर एजुकेशन के अंदर, SCERT के अंदर, इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ ICT इन टीचिंग लर्निंग। देन बहुत सारी ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स में मुझे बुलाया गया है, क्योंकि मेरे बगल, जैसे मैंने कहा, स्कूल के बिल्कुल बगल में आर्मी का यूनिट था, और वहाँ वो सिविल सर्विसेज, जो सिविल पॉपुलेशन है, उनके लिए डिफरेंट सेशंस करवाते थे। चूंकि मैं बायोसाइंस बैकग्राउंड से था, और उनके लिए मेरे से ये सेशंस फ्लोरिकल्चर, एप्रीकल्चर हो गया, या मशरूम कल्चरिंग हो गया, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे सेशंस किए हैं। देन न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स के लिए टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी होनी चाहिए, या इसमें हम टेक्नोलॉजी की किस तरीके से इंडक्ट कर सकते हैं, ये भी मैं इन लोगों के लिए सेशन कर चुका हूं। देन whosoever visits my ICT lab, उस वक्त जो भी पर्सनालिटी वहां आती थी और वो काम देख के वो जो हमारी विजिटर बुक है उसमें आपने रिमार्क्स देती थी, और ये जितने भी पर्सनालिटीज मेरे वहां आई हैं उनके रिमार्क्स की चंद झलकियां जो है ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसके बाद उस अपने ही उस प्रीवियस इंस्टीट्यूशन के अंदर आई प्लेड एन एक्टिव रोल इन ऑर्गेनाइजिंग वेरियस कैंपेन्स, बच्चों के साथ मिलके स्वच्छ भारत अभियान हो, या नेशनल वोटर्स डे हो, या इसके रिलेटेड कोई रैली हो, एंटी ड्रग रैली हो, या डिफरेंट जो डेज हम सेलिब्रेट करते हैं उसमें भी मुझे बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला। इवन हमारे स्कूल के अंदर, या जो मेरा प्रीवियस स्कूल है उसमें हमने एक हर्बल गार्डन भी बनाया है, और उसकी देख रेख भी हमारे सर थी, हमने उसकी देख रेख की। और जैसे मैंने कहा कि मैं बायोसाइंस बैकग्राउंड से हूँ, उसकी जो जितनी भी प्लांटेशन वहाँ थी उसकी जो साइंटिफिक नेमिंग है वो मैंने की है, या स्कूल को ब्यूटिफाई करने के लिए जो प्लांटेशन ड्राइव ये हमने किया लोकल पॉपुलेशन के साथ या आर्मी के साथ मिलके। देन इफ आई टॉक अबाउट कम्युनिटी आउटरीच, तो NGOs के साथ मिलके, अपने स्टाफ के साथ मिलके हमने बच्चों के लिए बुक्स डोनेट करवाई हैं, यूनिफॉर्म्स, शूज। फिर मैं स्कूल जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी मेंबर है उसका मेंबर भी रहा हूँ। स्कूल SMDC जो कमेटी स्कूल्स के अंदर होती है, और जो भी कंस्ट्रक्शन वहाँ स्कूल के अंदर होती थी तो उसकी देख रेख भी हम करते थे। सो इफ आई टॉक अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इसने 6th क्लास ऑनवर्ड्स कोडिंग एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ इंडिया, JKNN एंड पाईजेम लॉन्च स्क्रैच कोडिंग फॉर द स्टूडेंट्स। और इसका पर्पस यही था कि बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है या क्रिटिकल थिंकिंग है ये बच्चों के अंदर डेवलप हो। और इस स्क्रैच कोडिंग को मैंने खुद सीखा, और फिर मैं इस स्क्रैच कोडिंग को सिखाने के लिए मास्टर ट्रेनर भी रहा हूँ, और इस के लिए मैं कोऑर्डिनेटर भी काम कर चुका हूँ। और अपने ही डिस्ट्रिक्ट के
100 स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 क्लास ऑनवर्ड्स, उनको मैं ये स्क्रैच कोडिंग सिखा चुका हूँ। और ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि ये जो भी हमने काम किया है सारा बच्चों के साथ ऑनलाइन, और ये इवनिंग में हमारे सेशंस होते थे ये जो कोडिंग है इसके। देन कोडिंग विदाउट कंप्यूटर्स फॉर स्कूल्स हैविंग नो एक्सेस टू द कंप्यूटर्स, यानी ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर कंप्यूटर नहीं है, बट हमने यूनिसेफ के साथ मिलके, पाईजैम के साथ मिलके ये जो फ्री किट्स मिली हम स्कूलों तक पहुंचाई, और हर स्कूल में एक एक किट जो है फ्री मिली है, और उन बच्चों को हमने ये ब्लॉक बेस्ड कोडिंग यानी कोडिंग विदाउट कंप्यूटर्स ये भी सिखाने में कामयाब हुए हैं। उसके बाद इन 2022 I joined Diet Rajouri, and I got an opportunity to join Diet Rajouri as a special assignment from former Principal Secretary श्री BK सिंह, और उन्होंने मुझे ट्रांसफर किया और मुझे डाइट में लगा दिया कि भाई आपके इतने अचीवमेंट्स हैं, तो इस अचीवमेंट से हमने बेनिफिट लेना है, आप इमीडिएटली डाइट ज्वाइन करिएगा और डाइट में जाके आप ये ICT के ऊपर काम करिएगा। और जैसे ही मैंने डाइट ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि 2021 में एक डाइट में सर्वे हुआ था, डिजिटल लिटरेसी इन रजौरी, इन टीचर्स ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट रजौरी, और उसका जो आउटकम था वो यही था कि बहुत सारे हमारे टीचर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऐसे हैं जिनमें डिजिटल लिटरेसी स्किल्स नहीं है, and they don't try to use these skills in their classroom, even if infrastructure is available in the schools. So my happiness knows no bounds when I see my teachers eager to learn the use of technology in their classroom, and I always encourage my teachers to use new ICT tools in teaching of all the subjects. तो डाइट में आते ही मैंने पहले, जब मैंने डाइट ज्वाइन किया तो मैंने पहले डाइट का लोगो तैयार किया, देन मैंने डाइट की जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें मैंने टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया, फिर मैंने डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में एज ए कोऑर्डिनेटर भी काम कर चुका हूँ, फिर की रिसोर्स पर्सन भी मैं रह चुका हूँ बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का। देन डिफरेंट जो असाइनमेंट्स हैं या इंटर स्कूल क्विज हो गया डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, वेदर इट इज सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, ये क्विज खुद बनाना और फिर इसको स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए प्रेजेंट करना। देन आई एक्टेड एज रिसोर्स पर्सन। जी सर, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो, हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा जुड़ने की, तब तक हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं वेबिनार जिसमें हम बात कर रहे हैं नेशनल ICT टीचर अवार्ड की जर्नी की। और आज के हमारे जो टीचर हैं वो हैं मिस्टर मोहम्मद अयाज रैना, और इनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, इनकी जर्नी के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। एंड जैसा हमने देखा कि इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। कोई भी क्वेरी हो आपके मन में, कुछ जानना चाहते तो हमें ज़रूर बताएं। ऑल्दो वी हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कमेंट्स इन यूट्यूब, आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप फिर भी यूट्यूब पर जा सकते हैं, NCERT ऑफिशियल पर लाइव चैट बॉक्स पर जाके अपना कमेंट आपको ड्रॉप करना है और आप सीधे हमारे एक्सपर्ट्स के लिए मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर जो है 8800440559। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है training.helpdesk@ciit.nic.in। और ये तमाम माध्यम है हमसे जुड़ने के, और हम चाहते हैं कि आप अपनी क्वेरीज़ के साथ, अपनी बातों के साथ हमसे जुड़ें हमारे इस लाइव इंटरैक्टिव फ़ोन इन सेशन में जो कि हम आपके लिए लेकर आते हैं। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम, एक्चुअल हमारा नेटवर्क चला गया तो मैंने आ गया वापस। शैल आई कंटिन्यू? श्योर सर, यू कैन कंटिन्यू सर। Am I audible मैम? यू आर क्वाइट ऑडिबल सर। तो मैं टेक्निकल और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ इंस्पायर अवार्ड मानिका, और काम इस आई गेस देर इज़ सम टेक्निकल ग्लिच। हम पूरी कोशिश करेंगे उनसे जो दोबारा जुड़ने की। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें एक बार फिर से कि आप अपनी सभी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे रिगार्डिंग इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। वी आर इंडीड वेरी प्राउड एट India assumed G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifests the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे
कि हम अपने विशेषज्ञ और एक्सपर्ट के पास जाए, लेकिन एक और ज़रूरी सूचना हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे NCERT टेक्स्ट बुक्स के रिगार्डिंग. NCERT textbooks for the year 2023-24 are available throughout the country, and these textbooks may be purchased directly from NCERT sales counters located at New Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata and Guwahati. These sales counters will be functional on all the weekdays, including all the gadgeted holidays, Saturdays and Sundays as well, from 9:30 a.m. to 6 p.m. You may also place order for the books online from our website, that is ncerdbooks.ncert.gov.in, and these books will be delivered at your doorsteps with no delivery fees. And if you want a soft copy of all those books in PDF version, it can also be downloaded online from NCERT Diksha e-Pathshala website and from our mobile app as well. We would request you to visit our website, that is ncert.nic.in, to know more about the authorized vendors. With that note, हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं अपने सर के पास जाने की. Hello, sir, are we audible to you? Yeah, ma'am. Yes, sir, please continue, sir. As a master trainer and professional development workshop of teachers for constructive teaching and learning using technology, इसमें भी काम कर चुका हूँ. Then as a resource person in workshop on use of virtual labs, then content awareness, enrichment and pedagogical skills in teaching science, इसका मैं रिसोर्स पर्सन रहा हूँ. ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स रिगार्डिंग नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, इसका मैं एकेडमी कोऑर्डिनेटर हूँ, डिस्ट्रिक्ट एकेडमी कोऑर्डिनेटर, और इसमें भी टीचर लोगों को गाइड करते हैं हम. देन डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजिटल इंडिया क्विज का मैं मास्टर यानी क्विज मास्टर रह चुका हूँ. एकेडमिक सपोर्ट भी मैंने प्रोवाइड की है. जब कभी मैं डाइट से फील्ड मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं और बच्चों से रब्ता करते हैं, पूछते हैं, और जब जहां भी बच्चों को कमी महसूस होती है तो उनकी वो जितनी भी कमी है वो दूर करने की कोशिश करते हैं. देन डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस, मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन जो अभी लास्ट ईयर ऑनलाइन ही हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक, और इसमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है ऑनलाइन. देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईसीटी लैब इन डाइट रजौरी, जो मुझे एक स्पेशल असाइनमेंट मिला था फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनसे, तो ये उस वक्त की लैब की इनॉग्रेशन है. देन दिस इज द व्यू ऑफ द लैब, जिसमें स्मार्ट गैजेट्स, चाहे वो इंटरैक्टिव पैनल हो, पोडियम हो, स्मार्ट बोर्ड हो, या डिफरेंट जो डेस्कटॉप्स हैं, वाईफाई है, प्रोजेक्टर, सारी चीजें जो है हमने इसमें इंस्टॉल की. बट द लैब वाज डेवलप्ड आफ्टर रिसीविंग सम ग्रांट्स फ्रॉम समग्र शिक्षा. सो मैं मेंबर रहा हूँ जेके साइंस कम्युनिकेटर्स नेटवर्क का, और इसका एक मिशन ये है कि बच्चों की अंदर एस्ट्रोनॉमी की तरफ इंटरेस्ट क्रिएट करना, और जितने भी हमारे जो हमारा सोलर सिस्टम है उसकी जानकारी बच्चों को देना. हम प्लेनेट, सैटेलाइट्स को किस तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, और इसका हमने एक वर्कशॉप लगाया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के एक रिनाउंड स्कूल के अंदर, हमालिन कैंपस में, और वहां पर तकरीबन 300 बच्चे जो है ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उनको इसका फायदा भी हुआ. सो अगर मैं बात करूं कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक की, तो मैं चूंकि कोविड पैंडेमिक के अंदर एक अनप्लान्ड माइग्रेशन हुई टुवर्ड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एंड इसके लिए शायद हम तैयार भी नहीं थे. बट मैं यहाँ थैंक्स करना चाहूंगा उस वक्त हमारे टीचर लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जब मिलियंस ऑफ बच्चे जो है यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग जो है मुतासर हो रहे थे स्कूलिंग से, उनकी एजुकेशन सफर हो रही थी, और हमारे टीचर लोगों ने उस वक्त भी टीचिंग लर्निंग को डिस्टर्ब होने नहीं दिया. उन्होंने टीचिंग लर्निंग जो है इस पैंडेमिक पीरियड में कंटिन्यू किया अपने घरों से. एंड एज आई बिलोंग टू रिमोट एरिया, आई एम क्वाइट अवेयर कि जो अंडर प्रिविलेज जो स्टूडेंट्स हैं, या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं विच आर या हु आर द विक्टिम्स ऑफ डिजिटल डिवाइड, तो किस तरीके से इनकी ये जो प्रॉब्लम है इसको दूर किया जा सकता है. सो फॉर द वेलफेयर ऑफ सच स्टूडेंट्स आई हैव मेड एफर्ट्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्सेज. तो मैंने जो इनिशिएटिव लिए कोविड पैंडेमिक के अंदर, मैं वो यहाँ पिक्चर्स की ज़बानी आपको बताऊंगा. मैंने कम्युनिटी टीचिंग घर में की आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स. देन मैंने बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड करके डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के पोर्टल पे दिए, जहां पर बच्चों ने ये उस पोर्टल को एक्सेस किया और इसका उनको लाभ भी हुआ. देन ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्कशॉप्स मैंने टीचर लोगों के लिए कराई कि इस कोविड पैंडेमिक में जब टीचर्स को मोबाइल चलाना नहीं आता था, कंटेंट क्रिएट करना नहीं आता था, तो कौन कौन से टूल्स जो है यूज
कर सकते हैं फॉर कंटेंट क्रिएशन। तो इसमें हमें बहुत सारा फायदा हुआ। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के टीचर्स के पास हम ऑनलाइन जुड़े या और उनको हम ये टूल सिखाए। देन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हमने की, डिफरेंट टूल्स यूज करके बच्चों की ऑनलाइन क्विजेस हमने करवाए। और इवन जो मेरे फेलो कोलीग्स थे उनके साथ मिलके फ्रॉम यूपी, तेलंगाना, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, जितने भी अवार्डीज थे, हमने मिलके एक 10 डेज का एक वेबिनार करवाया जिसमें हर दिन हमारा एक डिफरेंट टूल होता था टीचर्स लोगों के लिए। तो इसमें भी हमारे डिफरेंट जो स्टेट या यूटीज के टीचर्स को फायदा हुआ और मैंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया, मैंने भी एक इम्पोर्टेंट सेशन लिया। देन चूंकि कोविड पीरियड के अंदर जस्ट टू ट्रैक द कोविड पेशेंट्स, तो इसके लिए जो स्वास्थ्य निधि ऐप थी उसका मैं मास्टर ट्रेनर रह चुका हूँ। बहुत सारे टीचर्स को, चूंकि जब डोर टू डोर जाना था ट्रैक करने के लिए इस ऐप के जरिए पेशेंट्स को, तो इसकी ट्रेनिंग मैं दे चुका हूँ। देन चूंकि हमारे बच्चे ऐसे रूरल एरिया से हैं जहां पर नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं है, स्मार्ट गैजेट्स घर में नहीं है, तो उन बच्चों को भी हमने प्रिंटेड स्टडी मटेरियल जो है उन तक हमने पहुंचाया। और इफ आई टॉक अबाउट माय अचीवमेंट्स, तो मैं 2017 का नेशनल आईसीटी अवार्डी हूं, जो मुझे कन्फर किया गया 2019 में फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। देन मुझे प्राउड है कि 2021 में आई गॉट बेस्ट टीचर अवार्ड फ्रॉम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, and I have gained a lot of approbation in the form of numerous appreciation certificates from various educational organizations, including Directorate of School Education Jammu, Samagra Shiksha, UNICEF, PIGEM, AKS Foundation, and even Universal Teachers Academy। उन्होंने भी मेरे काम की सराहना की और मुझे अप्रिशिएट किया। Then if I talk about my future plan, तो I'm looking forward to achievement of 100% digital literacy of एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर्स ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट। और इसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, चूंकि मैं डाइट में हूँ और मैं प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 8 से 9 मिनट के समय और है, शेष है इस सत्र के लिए। सर थैंक यू मैडम। जस्ट आई विल जस्ट वाइंड अप विदिन 2 or 3 minutes। तो फॉर दिस आई एम प्लानिंग टू बी पार्ट ऑफ आईसीटी ट्रेनिंग्स जो डाइट कंडक्ट करने जा रहा है ड्यूरिंग दिस 2023-24 सेशन में। और इसके लिए मैं कुछ ट्यूटोरियल्स भी बना रहा हूँ कि कौन कौन से टूल्स जो हैं हम, या कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है हम यूज कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग में। और चूंकि हम डाइट में हैं और अभी रिसेंटली हमें एक अप्रूवल भी मिला है एक्शन रिसर्च जी। हमने एक रिसेंटली एक्शन रिसर्च के पेपर भेजा था, उसका अप्रूवल मिल गया है। तो वो जो है, क्योंकि उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे टीचर्स को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है या कौन कौन से इश्यूज हैं इन यूज ऑफ आईसीटी। तो इस पे हम पूरी रिसर्च करके इसका एक काम करने जा रहे हैं। और मेरा जो विजन है कि just to see every teacher ये digitally literate होना चाहिए and able to create and disseminate e-content and plan his her lessons using ICT, so that जो ICT है it may reach each and every corner of the classroom of my district। और इसके बाद मैं ये जो कपलेट्स हैं, कुछ पोइम है, ये एक या पोइम स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैं ये डेडिकेट कर रहा हूँ उन टीचर्स को जिन्होंने कोविड पैंडेमिक में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया है। सो आई विल जस्ट, मैम शैल आई टेक 1 minute? श्योर सर। From hand holding to screen sharing, from chalk to chat, from blackboard to digital board, from traditional to virtual, the journey was difficult, but you did not give up. From all offline to online, from keep quiet to speak up, from no mobile to turn on mobile, from conventional to technical, the journey was difficult, but you did not give up. From notebook to screenshot, from manual assessment to online assessment, from classroom to Zoom, and from school, college to home, the journey was difficult, but you did not give up. So this was my brief presentation, या जो मेरा काम था जो मैंने आपसे शेयर किया। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। बट लास्ट मैं एक कोट आप सब लोगों की नजर कर रहा हूँ कि वी नीड टेक्नोलॉजी इन एवरी क्लासरूम एंड इन एवरी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैंड। चूंकि ये आज के दौर का ये पेन और पेपर है टेक्नोलॉजी, और इसका हम इस्तेमाल करके वी कैन एक्सपीरियंस मच ऑफ अवर वर्ल्ड। सो थैंक यू वेरी मच सर।
कि आप हमसे जुड़े और आपने हमें अपनी जर्नी बताई और आपने बताया कि किस किस तरह से चैलेंजेस आपके सामने आए और कैसे आपने उन्हें ओवरकम किया। और हमें ये जान के बहुत अच्छा लगा और अभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद से हमसे जुड़ने के लिए। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि आप थ्रू आउट दिस सेशन हमारे साथ रहे। टू ऑल द व्यूअर्स आई एम सेइंग थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस थ्रू आउट दिस सेशन। आपके ढेर सारे कमेंट्स हमें मिले यूट्यूब पर, आपके सभी कमेंट्स का, आपके एप्रिसिएशन का थैंक यू सो वेरी मच। और हम अपने सभी देखने वालों को बता दें कि हम बात कर रहे थे अपने नेशनल ICT टीचर अवार्डी से और उनके जर्नी के बारे में जाना, रैना सर की जर्नी के बारे में जाना। और अब समय की एक ब्रेक पे हम जाए, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन के साथ हम हाजिर होंगे जो कि है सहयोग, और जिसमें हम बात करते हैं बच्चों के मेंटल वेलबींग पर और पूरी कोशिश करते हैं उनको साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करने की। तो अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहिए ई विद्या चैनल और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।